So students, we have been doing my childhood. This is the third video. This is the third class of the chapter. In the previous class, we have read about how Abdul Kalam sir used to spend his childhood without any discrimination, or should I say, without any communal discrimination. He never faced any discrimination because of being Muslim, whereas his all the close friends were Orthodox Hindus. Okay, but still he had very good childhood without any discrimination. But something happened when he was in class fifth. Okay, so we'll just go through it now. The change he had, the first time discrimination he faced. Okay, he has given an account of the discrimination he faced for the first time in his school. So moving on with the sixth paragraph now. One day when I was in the fifth standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanda Shastri, who wore sacred thread. So now यहाँ पे कलाम सर कह रहे हैं कि एक बार अ, एक बार का इंसिडेंस वो बता रहे हैं कि जब वो क्लास फिफ्थ में थे उस टाइम का वो इंसिडेंस बता रहे हैं कि कलाम सर हमेशा जो वाइट कैप होती है, मुस्लिम्स जनरली जो कैप पहनते हैं उस तरीके की कैप वो पहनते थे डेली स्कूल जाते समय, और वो फ्रंट रो में बैठते थे हमेशा। फ्रंट रो में वो हमेशा अपने फ्रेंड रामानंदन शास्त्री के साथ बैठते थे, जो कि वो सेक्रेट थ्रेड, दैट इज जो जो पुजारी लोग जो ऐसा थ्रेड सा पहनते हो, जिसे हम जनेऊ कहते हैं, ठीक है, अपने राउंड वो लोग थ्रेड सा पहनते हैं। ओके, शोल्डर से वेस्ट तक आता है क्रॉस में, वो पहना करते थे। ठीक है, सो क्लास फिफ्थ में जब थे कलाम सर, तब वो फ्रंट रो में बैठा करते थे, फ्रंट बेंच पे बैठते थे रामानंद शास्त्री के साथ। रामानंद शास्त्री कौन है? रामानंद शास्त्री रामेश्वरम टेम्पल के चीफ प्रीस्ट के बेटे हैं, है ना। तो पुजारी है, पंडित है, तो वो सीक्रेट थ्रेड पहना करते थे, और कलाम सर मुस्लिम है, इस वजह से मुस्लिम्स की व्हाइट कैप पहना करते थे। ओके, और दोनों हमेशा साथ ही बैठते थे। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our school ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the last bench. I felt very sad, and so did Ramanda Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. सो नाउ फर्दर वो कह रहे हैं कि जो नए टीचर आए थे वो बिल्कुल भी नहीं देख पाए कि एक एक मुस्लिम बॉय एक हिंदू पुजारी के बेटे के साथ बैठे। ठीक है, सो नाउ टीचर ने क्या किया, उन्होंने, क्योंकि कलाम सर मुस्लिम थे, वो नहीं चाहते थे कि वो किसी हिंदू के साथ बैठे, वो कलाम सर को जाके एकदम लास्ट बेंच पर बैठने के लिए कह देते हैं। अब वो भाई स्टूडेंट है, उन्हें तो अपनी टीचर की बात माननी थी। वो चुपचाप उठ के पीछे जाकर बैठते हैं और वो देखते हैं अपने दोस्त रामदास शास्त्री को कि इस चीज से कलाम सर भी बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, साथ ही साथ रामदास शास्त्री भी बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। एंड वो उनके फेस से लग रहा था कि बहुत ज्यादा अपसेट हो गए हैं, और वो लिटरली रो रहे थे जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से एक टीचर ने कलाम सर को लेकर लास्ट बेंच पे बैठने के लिए कह दिया, जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम है। सो जब वो जो सीन था, जब वो पीछे जाकर बैठ रहे थे, रामंदर शास्त्री रो रहे थे, ये जिंदगी भर के लिए वो मोमेंट उन्हें याद रहा है। तो नाउ इसके बाद क्या हुआ? अभी तक तो उन्होंने कभी भी इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस किया ही नहीं था, ये फर्स्ट टाइम था उनके लिए। तो इसके बाद क्या हुआ होगा? You will just read and find out what happened next. After the school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communalism, intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island.
Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. अब उसके बाद स्कूल में तो भाई ये हो गया, ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये लोग स्टूडेंट्स हैं, तो कलाम सर चुपचाप जाके पीछे बेंच पर बैठ गए। उसके बाद जब ये सब दोनों रामदास शास्त्री और कलाम सर अपने घर गए, घर जाके दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स को सारा इंसिडेंट बताया कि किस तरीके से नए टीचर ने उन लोगों के साथ बिहेव किया था। तब लक्ष्मणदास शास्त्री जो है, लक्ष्मणदास शास्त्री दैट इज रामदास शास्त्री के फादर, इन्होंने क्या किया, शास्त्री समन द टीचर। समन मतलब कहते हैं ना बुलाना या पेश करना, वो उस टीचर को, नए टीचर को बुलाते हैं और इन दोनों बच्चों के सामने ही, कलाम सर और रामदास शास्त्री के सामने ही उस टीचर से कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये बहुत ही इनोसेंट होते हैं, इनका माइंड और इनका हार्ट बहुत ज्यादा इनोसेंट है, तो टीचर होके उन्हें इस तरीके से जो जहर है इन बच्चों के मन में नहीं बैठाना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम का लेकर जो जो जहर, जो पॉइजन है, या ये कम्युनिटीज को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये इन इनोसेंट बच्चों के माइंड में नहीं बैठाना चाहिए था। ठीक है, और काफी स्ट्रांगली उन्होंने टीचर से कहा, या तो तुम अपोलोजाइज करो, माफी मांगो, या नहीं तो तुम अभी के अभी ये स्कूल और ये आइलैंड छोड़कर चले जाओ। ठीक है, सो इस इंसिडेंट के बाद जो टीचर है उसे जेन्युइनली इतना ज्यादा रिग्रेट फील हुआ था अपने आप पर कि वो पूरी तरीके से बदल गए थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जो है पूरी तरीके से बदल गए थे। सो इस तरीके से जो फर्स्ट टाइम डिस्क्रिमिनेशन कलाम सर ने फेस किया था वो था जब वो 5th क्लास में थे और एक नए टीचर आए थे उनके स्कूल में जिन्होंने मुस्लिम होने की वजह से उन्हें लास्ट बेंच पर बैठने दिया और किस तरीके से उनके पेरेंट्स ने टीचर को अच्छी तरह से लेसन सिखाया। सो मूविंग ऑन विद द चैप्टर, जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज यहाँ पे दी गई है कि किस तरीके से, देखिए जो सेकेंड है कलाम सर बैठे हैं और उसके पास नेक्स्ट में सेक्रेट रेड पहन के ये रामदास शास्त्री बैठे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमेशा फ्रंट रो में बैठा करते थे। अब अगर स्कूल है तो आप अभी जिस तरीके की स्कूल है इस तरीके से तो इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम की स्कूल्स ऐसी होती थी जहाँ पे बच्चों को फ्लोर पर बैठना होता था। ठीक है, so moving on with the eighth paragraph now. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher, Shiva Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin, was with a very conservative wife, with something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. अब जो है यहाँ पे कलाम से कह रहे हैं कि अगर ऑन द होल पूरी तरीके से देखा जाए तो सिर्फ इनके पेरेंट्स ही नहीं है, बल्कि रामेश्वरम में हर हर कोई पर्सन, जो रामेश्वरम एक छोटी सी जगह है यहाँ पे, ये जगह जो है बहुत ही रिजिड है। रिजिड मतलब बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करने वाला, बहुत ही कठोर होने वाला। ठीक है, किस टर्म्स में, सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। सेग्रीगेशन मतलब सपरेशन। ठीक है, जहाँ मतलब रामेश्वरम में बिल्कुल भी ये चीज नहीं चलती थी कि अलग अलग सोशल ग्रुप में डिस्क्रिमिनेशन और सपरेशन हो या सोशल ग्रुप्स को सेपरेट कर दिया जाए। ठीक है, इस चीज में बहुत ज्यादा रिजिड था, मतलब यहाँ पे हर एक सोशल ग्रुप मिलकर रहते थे कि ऐसा लगता ही नहीं था कि सारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं। इस तरीके की ब्यूटीफुल जगह थी रामेश्वरम। ओके, सो हर कोई यहाँ पे यही सोचता था कि इस तरीके का सेग्रीगेशन कभी भी नहीं होना चाहिए। अब फर्दर वो इंसिडेंट्स बता रहे हैं उनके साइंस टीचर का। ठीक है, कलाम सर यहाँ पे अपने साइंस टीचर के बारे में बता रहे हैं जिनका नाम है शिव सुब्रमण्य अय्यर। ओके, ये भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, और इनकी एक बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव वाइफ थी। अब कंजर्वेटिव क्या होता है? कंजर्वेटिव मतलब समवन जो कि अपने ही रिचुअल्स को मानने वाला। ठीक है, कि हम हिंदू हैं तो बस हिंदू ही हमारा धर्म है, दूसरे धर्म हमें नहीं पसंद है, इस तरीके से। ठीक है,
सो इनके साइंस टीचर हैं जो जो एक ब्राह्मण ब्राह्मण है और इनकी वाइफ बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल। रेबल मतलब जो रेबिलियन करता है, जो विरोध करता है, ठीक है। तो इनकी वाइफ इस चीज का विरोध करती थी कि हिंदू मुस्लिम में डिफरेंस होना चाहिए इस तरीके से। नाउ अब यहाँ पे इनके जो साइंस टीचर हैं, इन्होंने बहुत कोशिश की जो सोशल बैरियर्स है, कम्युनिटीज को लेकर के जो सोशल बैरियर्स है वो पूरी तरीके से तोड़ सके, ताकि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आपस में एक दूसरे से मिल सकें। जब अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग कल्चर के लोग आपस में मिलेंगे, इससे क्या होगा, कल्चर स्प्रेड होगा। हम उनके कल्चर के बारे में जानेंगे, वो हमारे कल्चर के बारे में जानेंगे, हमारे बीच में यूनिटी आएगी, ठीक है। तो इनके साइंस टीचर ने बहुत कोशिश की कि ये जो उनकी वाइफ की मेंटालिटी है, जो उनका कंजर्वेटिव एटीट्यूड है, वो चेंज कर सकें, और जो सोशल बैरियर्स उनके माइंड में है वो ब्रेकअप कर सके, ताकि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक दूसरे से मिल सके। मिंगल होना मतलब आपस में मिलजुल कर रहना। देन फर्दर वो कह रहे हैं कि जो उनके साइंस टीचर थे वो घंटों कलाम सर के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, और वो कलाम सर को हमेशा कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप करो, ठीक है, तुम इतना आगे बढ़ो और इतनी ज्यादा हाईली एजुकेशन तुम पाओ, ताकि लोग तुम्हें पहचाने, ठीक है। वो कहते थे कि रामेश्वरम क्योंकि छोटी सी जगह है, तो यहाँ पे एजुकेशन, उतनी ज्यादा हाई एजुकेशन नहीं मिल सकती थी, लेकिन इनके जो साइंस टीचर है वो हमेशा मोटिवेट करते थे कलाम सर को कि तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो, और जिस तरीके से शहर के लोगों को हाई एजुकेशन मिलती है, वैसी एजुकेशन तुम्हें भी मिले। तो यहाँ पे इनके साइंस टीचर हिंदू होते हुए भी वो एक मुस्लिम बॉय को इतना ज्यादा एनकरेज, इतना ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जो चाइल्डहुड रहा है कलाम सर का रामेश्वरम में, वो इतना प्योर, इतना डिवाइन रहा है, जहाँ पे कोई सोशल बैरियर्स नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी के भी मन में, चाहे वो पर्सन ऑर्थोडॉक्सी क्यों ना हो, सब लोग हमेशा एक यूनिटी से रहते थे, ठीक है। तो जैसे कि आज हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है कम्युनिटीज को लेकर के, लेकिन कलाम सर के रामेश्वरम में ऐसा कोई भी चीज नहीं थी। इनफैक्ट जो उन्हें सक्सेस मिली है, जो इतने ज्यादा फेमस, इतने ज्यादा इतने बड़े वो साइंटिस्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका जो बैक सपोर्ट रहा है वो उनका ये चाइल्डहुड ही रहा है। किस तरीके से उनके फ्रेंड्स हिंदू होते उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ फ्रेंडशिप रख रहे थे, उनके टीचर्स उन्हें मोटिवेट कर रहे थे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एनकरेज करी है कलाम सर को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरीके से उनके साइंस टीचर उन्हें मोटिवेट किया करते थे। अब यहाँ पे वो एक इंसिडेंस बता रहे हैं उनके साइंस टीचर के साथ ही, और उनकी वाइफ के साथ कलाम सर का एक इंसिडेंस है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine with her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Shiv Subramanya Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. अब बता रहे हैं कलाम सर कि एक बार जो उनके साइंस टीचर थे, ठीक है, उन्होंने कलाम सर को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था। ओके, उन्होंने उन्होंने इनके साइंस टीचर ने कलाम सर को एक बार अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था, लेकिन हम यहाँ देख चुके हैं कि इनकी जो वाइफ है बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा था कि एक मुस्लिम लड़का उनके घर में, जो कि रिचुअली प्योर किचन है, रिचुअली प्योर किचन मतलब ब्राह्मण्स है तो प्योर होता है, एकदम वेजिटेरियन खाना बनता है, एकदम साफ सफाई पूजा पाठ होती है। उनका ये मानना था कि जो इनका रिचुअली प्योर किचन है, यहाँ पर एक मुस्लिम बॉय कैसे आ सकता है। मुस्लिम क्यों, क्योंकि मुस्लिम है तो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, और ये लोग ब्राह्मण्स है तो प्योरली वेजिटेरियंस है, ठीक है। और दूसरे को रिलीजन का पर्सन उनके घर में आए खाना खाने के लिए उनके किचन में, क्योंकि पहले तो ये होता था कि किचन में ही बैठकर खाना खाते थे, अब आजकल हम है कि हमें डाइनिंग टेबल चाहिए, हम टीवी के सामने बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन पहले के लोग किचन में ही खाना खाया करते थे। तो उनकी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि एक मुस्लिम लड़का उनके किचन में आकर खाना खाएगा, और उन्होंने साफ साफ इनके साइंस टीचर को मना कर दिया था कि वो इस मुस्लिम लड़के को खाना सर्व नहीं करेगी। लेकिन इस इनकी वाइफ के इस बिहेवियर का
कोई असर सुब्रमण्यम अय्यर पे नहीं हुआ था। वॉज नॉट प्रेट्यूब्ड, प्रेट्यूब मतलब अपसेट हो जाना, ठीक है, कि वो निराश नहीं हुए, अपसेट नहीं हुए, ना ही उन्हें अपनी वाइफ पर गुस्सा आया, बल्कि इनके साइंस टीचर ने खुद कलाम सर को अपने हाथों से खाना सर्व किया, ना ही खाना सर्व किया बल्कि उनके पास बैठकर उनके साथ खाना भी खाए थे, ठीक है। His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. So now, अब देखो यहाँ पे किस तरीके से चेंज आया सुब्रमण्य अय्यर की वाइफ में। तो पहले तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जब खाने पर आए थे तब उन्होंने खाना सर्व करने से मना कर दिया, तो सुब्रमण्य अय्यर उन्हें खाना सर्व करके उनके साथ ही खाना खा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे सुब्रमण्यम अय्यर का इंटेंशन था कि वो अपनी वाइफ की मेंटालिटी चेंज करें। तो वो सोच रहे थे कि जो उनकी वाइफ है, जो किचन के इसी के बाहर छुप के हमें देख रही है, तो सोच रहे थे कि क्या मेरी वाइफ ने ऑब्जर्व किया है कि हम दोनों में क्या डिफरेंस है। जिस तरीके से मैंने राइस खाए हैं, खाना खाने के बाद मैंने पानी पिया, और जिस तरीके से मैंने खाने के बाद पूरा फ्लोर साफ किया, ठीक है, तो मुझ में और उस लड़के में क्या डिफरेंस है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ वैसे वो भी खाना खा रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ वैसे वो भी पानी पी रहा है, तो दोनों में कोई डिफरेंस था ही नहीं। तो सुब्रमण्यम अय्यर चाह रहे थे कि उनकी वाइफ ये चीज देखे कि कम्युनिटी डिफरेंस होने की वजह से इंसान में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, इंसान एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। और खाने के बाद जब कलाम सर घर से वापस जा रहे थे, तब जो है सुब्रमण्य अय्यर ने उन्हें दोबारा से इनविटेशन दिया कि नेक्स्ट वीकेंड वो डिनर पे इनके घर आए, ठीक है। एक बार आ गए, कलाम सर अपसेट थे उनकी वाइफ के बिहेवियर को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद सुब्रमण्य अय्यर जो है दोबारा से नेक्स्ट वीकेंड डिनर पर कलाम सर को बुलाते हैं। अब यहाँ पे कलाम सर थोड़े से हेजिटेट हो रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं अच्छा लग रहा था कि वो इस तरीके से जबरदस्ती जाए, जबकि सर की वाइफ को पसंद नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सुब्रमण्य अय्यर उन्हें समझाते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि अगर हम एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि अगर हम एक बार डिसाइड कर लें कि हमें कोई चेंजेस लाने हैं सोसाइटी में, ठीक है, तो इस तरीके की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है हैव टू बी कॉन्फ्रॉन्टेड। कॉन्फ्रॉन्टेड मतलब सामना करना, फेस करना। वो अ, इस कंडीशन में उनके साइंस टीचर समझाते हैं कलाम सर को कि अगर हम एक बार सोच लेते कि हमें सोसाइटी में चेंज लाने हैं, तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएगी हमें उनका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद जब नेक्स्ट वीकेंड इनविटेशन के अकॉर्डिंग कलाम सर दोबारा से सुब्रमण्यम अय्यर के घर जाते हैं डिनर पे, उस टाइम पे वो देखते हैं कि जो उनकी वाइफ है वो खुद कलाम सर को उनके साथ उनके किचन में ले गई और अपने हाथों से उन्हें खाना सर्व किया, ठीक है। तो ये एक और एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कलाम सर की लाइफ से रहा है, जहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कुछ लोगों के माइंड में डिस्क्रिमिनेशन होता था वो भी धीरे धीरे कैसे चेंज हो रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है अपने साइंस टीचर का, सुब्रमण्य अय्यर का, जिनकी वाइफ प्योरली ऑर्थोडॉक्स थी, कंजर्वेटिव थी, जो नहीं चाहती थी कि उनके किचन में कोई मुस्लिम लड़का आए। लेकिन किस तरीके से उनके साइंस टीचर ने अपनी वाइफ की मेंटेलिटी इस तरीके से चेंज की कि नेक्स्ट टाइम जब कलाम सर को इनवाइट किया गया तब वो खुद सर की वाइफ खुद कलाम सर को अपने साथ अपने किचन में ले गई और अपने हाथों से उन्हें खाना सर्व किया। ओके, so moving on with the next paragraph. Then the Second World War आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। इसके आगे का हम कल की क्लास में करेंगे, जहाँ पर रिमेनिंग 2 पैराग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन करके एक बार दोबारा से पूरी स्टोरी या मैं यूँ कह लूँ कि पूरी समरी आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, आई होप अभी तक का चैप्टर टिल पैराग्राफ 9 आप सभी को क्लियर है।